containers P and Q of equal volume 1 liter each contain 6 gram of O2 and SO2 respectively at 300 Kelvin and 1 atmosphere. Then इसमें देखिए दो कंटेनर्स हैं P and Q and P contains 6 grams of O2 and Q contains 6 grams of SO2 और वो पूछ रहा है ऑप्शंस में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन P इज लेस देन दैट इन Q और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन Q इज लेस देन दैट इन P. दैट मीन्स आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करना है इसमें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने ये करना है कि आपको वेट दिया हुआ है ये ऑक्सीजन का और यू आर ऑल्सो गिवन 6 ग्राम्स ऑफ SO2 तो इसमें आप मोल्स निकाल देंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे. तो इसमें देखिए 6 grams of O2 6 grams of O2 means number of moles in this case will be 6 upon 32 and in this case it will be 6 upon molecular mass of SO2 that is 64. Now you have to compare the number of moles present in P and Q और यहां से पता लग रहा है कि 6 upon 64 is less than 6 upon 32. तो इसमें जब कंपैरिजन होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन Q इज लेस देन दैट इन P दिस इज लेस देन दैट इन P तो ऑप्शन हैज टू बी B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन Q इज लेस देन दैट इन P. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29th a 100 milliliter solution of 0.1 normal HCl was titrated with 0.25 normal NaOH solution. The titration was discontinued after adding 30 milliliter of NaOH solution. The remaining titration was completed by adding 0.25 normal KOH solution. The volume of KOH required for completing the titration is. अब इसमें देखिए एक तो है एसिड HCl और बेसिस जो यूज किए गए हैं स्टार्टिंग में यूज किया गया NaOH फिर उसको डिसकंटिन्यू करके KOH यूज किया गया. तो इक्वेशन जो आपने यूज करनी है नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज होनी है इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में यू विल यूज नॉर्मेलिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन में वैसे तो होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लेकिन एसिडिक पोर्शन के लिए इट विल बी N1V1 और जो बेसिक पोर्शन है दो बेसिस क्योंकि यूज हो रहे हैं तो इट हैज टू बी N2V2 प्लस N3V3. N1V1 this is for acid and these two are for the bases. N1 normality of acid HCl is given 0.1 normal. So it is 0.1 normal and volume is 100 milliliter solution of HCl. तो V1 is 100 और इसको टाइट्रेट किया उन्होंने सबसे पहले. The titration was done with the Na solution and that is 0.25 normal and volume used 30 milliliter प्लस उसका डिसकंटिन्यू करके KOH यूज किया गया और KOH की नॉर्मेलिटी इज आल्सो गिवन 0.25 नॉर्मल and we have to calculate the volume of KOH used. So you will use normality equation N1V1 is equal to N2V2 plus N3V3 क्योंकि bases दो हैं तो it has to be in the two parts N2V2 plus N3V3 and acid will be N1V1 और normality of acid is given 0.1 normal HCl and volume is given that 30 milliliter पहले डाला और उसको discontinue किया and this will be 0.25 into 30 plus 0.25 into V3. V3 you have to calculate. So by using this equation, V3 will come out to be 10 milliliter. So answer will be 10 milliliter and it is D option. Next question, question number 30th. KMnO4
reacts with oxalic acid according to the equation. Equation is given. Question number 30th. Equation is given. Twice MnO4 negative plus 5 C2O4 2 negative plus 16 H positive is giving twice Mn2 positive plus 10 CO2 plus 8 H2O. He is asking that here 20 milliliter of 0.1 molar KMnO4 is equivalent to 20 milliliter of 0.1 molar KMnO4 is equivalent to. Now, यहां से आप देखिए कि 2 moles of KMnO4 they are equivalent to 5 moles of oxalic acid. 2 moles of KMnO4 they are equivalent to 5 moles of oxalic acid. और यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको KMnO4 के बारे में वो गिवन है मोलैरिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में. तो आप क्या कीजिए कि KMnO4 का जो मिलीमोल्स हैं दे कैन बी कैलकुलेटेड. मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 और मिलीमोल्स आपको बताया था मिलीमोल्स आर इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर और वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन 20. So it will be 2 millimoles of KMnO4. अब क्योंकि 2 मोल्स जो हैं उसके साथ 5 मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिलीमोल्स ले लें कि 2 मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 दे शुड बी इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो इसमें भी आपने ऑप्शंस देखनी है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें 5 मिलीमोल्स आ रहे हो. तो इसमें देखिए 20 फर्स्ट वाली ऑप्शन 20 into 0.5 इट विल नॉट गिव यू द आंसर. आंसर विल बी डी 50 मिलीलीटर इंटू 0.1. डी ऑप्शन में देखिए 50 मिलीलीटर्स इंटू 0.1 दैट विल बी इक्वल टू 5 मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो आंसर हैज टू बी डी ऑप्शन. आपने जो इक्वेशन गिवन है उससे देखना है कि क्या रिलेशन है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का. 2 moles of KMnO4 in this reaction are equal to 5 moles of oxalic acid. तो जितना KMnO4 गिवन है आपको उसके मिलीमोल्स निकाले आपने. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स वो आए 2 मिलीमोल्स. तो 2 मोल्स क्योंकि 5 मोल्स के इक्विवेलेंट है इसमें, तो इसलिए 2 मिलीमोल्स शुड बी इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमोल्स. तो आंसर में देखना है, ऑप्शंस में देखना है आपने कि 5 मिलीमोल्स किस में आ रहे हैं. तो आ रहे हैं डी ऑप्शन में 15 to 0.1 is equal to 5 millimoles. So answer will be D. Next question, question number 31. Zinc sulfate contains 22.65% of zinc and 43.9% of water of crystallization. If the law of constant proportions is true, then the weight of zinc required to produce 20 grams of the crystals will be. Question number 31st is asking कि the weight of the zinc required to produce 20 grams of the crystal. 20 grams crystals बनाने हैं और कितना वेट चाहिए होगा, कितने ग्राम्स जिंक चाहिए होगा अगर 20 ग्राम्स क्रिस्टल्स बनाने हैं. तो आप देखिए ऊपर जो परसेंटेज गिवन है वहां से पता चलता है कि 100 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं 100 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स दे आर equivalent to 22.65 gram of zinc. तो 22.65 grams of zinc से you can make 100 grams of crystals. ये ऊपर से पता लग रहा है. क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से. Zinc sulfate contains 22.65% of zinc.
दैट मीन्स 22.65 ग्राम्स जो जिंक होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। तो ये रेफरेंस मिला आपको कि 100 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल जो बनेंगे दे कैन बी मेड फ्रॉम 22.65 ग्राम्स ऑफ जिंक। और वो बोल रहा है कि द वेट ऑफ द जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स अगर बनाने हो तो कितने जिंक से बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड से दिस कैन बी कैलकुलेटेड कि 20 ग्राम्स of crystals they can be made from 22.65 upon 100 into 20 and this will be equal to 4.53 grams. The answer will be B option 4.53. Next question, 32nd question. The weight of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam on it would be. Atomic weight is given, iron ka atomic weight is 56. Question number 32nd. The weight of the iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam. Steam के बारे में information दी है कि 18 gram steam is given. You have to write the equation. Iron, when it reacts with H2O steam, it leads to formation of oxide that is Fe3O4 plus hydrogen. और इसको बैलेंस करें अगर तो thrice Fe 4H2O 4H2. This is the balanced chemical equation. Now is asked for the weight of the iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam on it. अब आप देखिए यहाँ पे कि 4 moles of H2O वो रिएक्ट हो रहे हैं 3 moles of iron के साथ। 4 moles of H2O they are reacting with 3 moles of iron. 4 moles of H2O means 4 into 18 grams is reacting with 3 into 56 grams of iron. तो अब ये रेफरेंस मिल रहा है यहां से कि अगर 4 into 18 gram of H2O they are reacting with 3 into 56 gram of iron, तो 18 gram of iron कितने आयरन के साथ रिएक्ट होगा? That can be calculated. 4 into 18 grams of H2O reacts with 3 into 56 gram of iron. So 18 gram of H2O that will react with 3 into 56 divided by 4 into 18 and this will be equal to 42 grams. तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। एक बार फिर देख लीजिए, द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam on it would be. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में you have to write the balanced chemical equation और आयरन का स्टीम के साथ क्या रिएक्शन होता है ये पता होना चाहिए, कौन सा ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा। तो this will be the reaction Fe plus H2 steam, it will give Fe3O4 plus hydrogen. Now we have balanced this equation, thrice Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2. Now from the balanced chemical equation it is clear that 3 moles of iron they are reacting with 4 moles of H2O. 4 moles H2O का मीनिंग है 4 into 18 grams of H2O के साथ 3 into 56 ग्राम of iron react कर रहे हैं। तो 4 into 18 grams of H2O के साथ 3 into 56 ग्राम of iron is reacting। 18 ग्राम of H2O के साथ कितना iron react होगा, that can be calculated by using unitary method and answer will be C 42 grams. Next question, question number 33rd. And question number 33rd is, the metallic oxide contains 60% of the metal. The equivalent weight of the metal is. Now this is the question based on oxide formation method. जो मैंने formula लिखवाया था आपको, and formula was कि equivalent weight of element is equal to weight of element divided by
weight of oxide minus weight of element into 8. तो अब इस क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड कंटेन्स 60% ऑफ द मेटल. मेटल जो है वेट ऑफ द एलिमेंट और वेट ऑफ द मेटल जो है दैट इज 60%, दैट मीन 60. और वेट ऑफ ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है? दिस इज मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट को निकाल दिया जाए बीच में से या मेटल को निकाल दिया जाए तो वी आर लेफ्ट ओनली विद ऑक्सीजन. So he is saying कि metallic oxide contains 60% of the metal, the equivalent weight of the metal will be. तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? अगर metal is 60 तो बाकी जो बच गया 40% that will correspond to oxygen. So 60 upon 40 into 8. This will give you the answer, and answer is 12. So it is A option, question number 33rd. This formula you have to remember, weight of the element will be weight of element divided by weight of oxide minus weight of element. This is weight of oxygen only into 8. Next question, question number 34th. And in question number 34th, 1.12 milliliter of a gas is produced at STP by the action of 4.12 milligram of alcohol ROH with methyl magnesium iodide. The molecular mass of alcohol is. अब इसमें रिएक्शन पता होना चाहिए आपको ROH का with methyl magnesium iodide. ROH का रिएक्शन with methyl magnesium आयोडाइड. इसमें बन जाता है CH3 यहां से, H यहां से, CH4 बन जाएगी एक गैस प्लस MgI एंड OR. दिस विल बी द रिएक्शन. सबसे पहले रिएक्शन लिखना है आपने, बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखना है. और उसके बाद देखिए 1.12 मिलीलीटर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड. अब कौन सी गैस है? यहां पे CH4 के बारे में बात हो रही है. दिस इज द गैस और ये प्रोड्यूस हो रही है, कहता है 1.12 मिलीलीटर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय द एक्शन ऑफ 4.12 मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल. दिस इज 1.12 milliliter and alcohol is 4.12 milligram. तो इंस्टेड ऑफ मिली, दोनों साइड पे जो मिली है वी कैन कैंसिल दैट ऑफ. इट कैन बी 1.12 liter is prepared from 4.12 grams, and he has asked for the molecular mass of the alcohol. तो अब ये देखिए कि 1 मोल CH4 जो बन रहा है that is being made from 1 mole of ROH. रिलेशन जो है मोल्स में वो 1:1 है. तो अगर 1 मोल CH4 बनेगी वो कहां से बनेगी? 1 मोल ऑफ ROH से. और 1 मोल ऑफ CH4 का मीनिंग है कि 1 मोल का मीनिंग है यहां पे एसटीपी कंडीशंस पे इसको ले लें 22.4 लीटर्स. 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 कितने ROH से बन रहा है, कितने ग्राम्स ऑफ ROH से बन रहा है, ये अगर निकाल लें तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ROH. बिकॉज 22.4 लीटर जो बनवा रहे हैं हम यहां पे CH4 वो 1 मोल होगी CH4 की. बिकॉज एवोगैड्रो लॉ कहता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस विल बी इक्वल टू 1 मोल. तो यहां पे हमने लेना है 22.4 लीटर्स और कितने ग्राम्स में से, कितने ग्राम्स ऑफ ROH में से 22.4 लीटर CH4 बनेगी वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा ROH का. तो दिस विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड कि 1.12 लीटर्स जो CH4 बन रही है वो बन रही है 4.12 grams of ROH से. You have to calculate कि 22.4 liters of CH4 कितने ग्राम से बनेगी. 4.12 divided by 1.12 into 22.4 और इसको if we calculate it, this will come out to be 82.4 grams. So molecular mass of this alcohol, particular alcohol,
will be 82.4 grams and the option is C. Question number 34 फिर से देखिए एक बारी कि 1.12 milliliter of a gas is produced at STP by the action of 4.12 milligram of alcohol. और सबसे पहले इसमें आपने रिएक्शन लिखा ROH with CH3MgI, गैस बनेगी CH4 और ये बन रहा है साथ में MgIOR. इसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है कि 1.12 मिलीलीटर ऑफ CH4 बन रही है 4.12 मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल में से. 1.12 लीटर्स गैस बनेगी 4.12 ग्राम्स में से. अब यहां पे स्टोइकोमेट्री यहां पे यूज हुई है कि 1:1 रेशियो है दोनों का. अगर CH4 1 मोल बनती है तो वो 1 मोल ऑफ ROH से बनेगी और 1 मोल CH4 का मीनिंग है एसटीपी कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स. 22.4 लीटर्स दैट इज 1 मोल ऑफ CH4 जितने ग्राम्स ऑफ ROH से बनेगी दैट विल बी दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ROH. और यही मैंने किया है यूनिटरी मेथड से कि 1.12 लीटर्स जो बन रही है दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम 4.12 ग्राम्स. 22.4 liters will be from 82.4 grams. Next question, question number 35. 1.5 gram of a divalent metal displaced 4 gram of copper. Atomic weight is 64 from a solution of copper sulfate. The atomic weight of the metal is. Now this is based on मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड. इक्विवेलेंट वेट जो फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल Zn एंड कॉपर सल्फेट. क्वेश्चन नंबर 35. तो ये आपको बताया गया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग यू ZnSO4 प्लस कॉपर, और रिलेशन बताया था कि वेट ऑफ जिंक divided by weight of copper displaced will be equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of copper. और यही रिलेशन आपने इस न्यूमेरिकल में यूज करना है. यहां पे गिवन है कि 1.5 ग्राम एक डाइवेलेंट मेटल है, इट डिस्प्लेस्ड 4 ग्राम ऑफ कॉपर और उसका एटॉमिक वेट कॉपर का गिवन है एटॉमिक वेट 64 फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज, रिलेशन विल बी 1.5 ग्राम जो डाइवेलेंट मेटल है जितने 1.5 ग्राम ने कितना डिस्प्लेस किया, कॉपर डिस्प्लेस्ड इज 4 ग्राम ऑफ कॉपर. दिस शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट डाइवेलेंट मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. Equivalent weight of copper will be its atomic weight divided by valency. Valency will be 2 because copper sulfate solution की बात हो रही है यहाँ पे. तो 64 divided by 2. By using this relation सबसे पहले आप divalent metal का उसका equivalent weight E निकाल लोगे यहाँ से, और E जो है वो आ रहा है यहाँ पे 12. But in this question atomic weight के बारे में information मांगी है, atomic weight पूछा गया है, तो इसके बाद you have to use the relation that equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency, और divalent metal है तो valency will be 2. So therefore atomic weight will be equal to equivalent weight into 2. तो जो equivalent weight आया उसको 2 से multiply कर देना आपने. 12 जो आया into 2 that will be 24. Answer will be 24 grams. Next question, question number 36. 0.84 gram of metal carbonate reacts with 40 milliliter of N/2H2SO4. The equivalent mass of metal carbonate is. 36th question. 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट है और ये रिएक्ट किया है 40 मिलीलीटर ऑफ N/2H2SO4. सबसे पहले लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में मैंने ये चीज बताई थी कि जो चीजें रिएक्ट कर रही है उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करेंगे दे शुड बी इक्वल. तो 0.84 ग्राम्स जो रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट
वो कितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 से रिएक्ट किया, पहले हम वो निकालेंगे. H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स वी विल कैलकुलेट. Milli equivalents of H2SO4 will be n by 2 into 40, that is 40 into 1 by 2, and they are equal to 20. अब इसको मिली इक्विवेलेंट्स को 20 जो मिली इक्विवेलेंट्स आए हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विवेलेंट्स. जैसे मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, हम इसको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 will be equal to 20 divided by 1000. This will be 1 by 50 equivalents of H2SO4. अब जितने इक्विवेलेंट्स H2SO4 के रिएक्ट किए हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स कार्बोनेट के रिएक्ट किए होंगे by law of Gram equivalents. That means 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं H2SO4 के 1 by 50, इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स उसके रिएक्ट किए होंगे मेटल कार्बोनेट के. 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट जो आ रहे हैं that corresponds to, that is equal to 0.84 grams of metal carbonate. और अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट निकाल लें, that will be the equivalent mass of that metal carbonate. 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट निकाल लें, 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स का 0.84 है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा? दिस वी हैव टू कैलकुलेट. दिस विल बी 0.84 into this will be 50 and answer will be equal to 42 grams. This will be 42 grams. देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है. बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट्स, जब नॉर्मेलिटी करवाई थी मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स बताए थे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आर नथिंग बट दे आर वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस. और ये वैल्यू 1 कब होगी? ये 1 तब होगा जब वेट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट. दैट मींस अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो तो इन दैट केस वेट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप वेट निकालोगे यहां पे, दैट हैज टू बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. तो आंसर विल बी 42 ग्राम्स, सी ऑप्शन. इसमें मैंने मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के निकाले. सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स आर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स आए 20. इक्विवेलेंट्स जो थे, मिली इक्विवेलेंट्स जो थे उसको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया. 20 डिवाइडेड बाय 1000, 1 by 50 मिली इक्विवेलेंट्स. 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स जो आए हैं इसके, दे शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेड मेटल कार्बोनेट और H2SO4 के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे दे शुड बी सिमिलर, दे शुड बी सेम. दैट मींस 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही मेटल कार्बोनेट के रिएक्ट किए गए होंगे. लेकिन मेटल कार्बोनेट की इंफॉर्मेशन यहां पे ये गिवन है कि 0.84 ग्राम मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किया. तो 1 by 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स दे आर इक्वल टू 0.84 grams. So 1 gram equivalent will be equal to 42 grams and this will be equal to the equivalent mass of that particular substance, that particular metal carbonate. Next question, question number 37th. One atom of an element X weighs 6.664 into 10 raised to power minus 23 grams. The number of gram atoms in 40 kg of it are. We have to find out the number of gram atoms. Question number 27th. वन एटम जो है एलिमेंट एक्स का, उसका वेट गिवन है. हमने निकालना है कि उसके 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स का क्या वेट होगा. दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो दिस विल बी, अगर एक का वेट दिया हुआ है 6.664 into 10 raised to power minus 23 grams,
तो एवोगैड्रो नंबर का क्या वेट होगा, दैट विल बी एटॉमिक मास, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 से, और दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 ग्राम्स। और जो एटॉमिक मास होता है, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, एटॉमिक मास जो भी किसी एटम का एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम एटम, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। 40 ग्राम्स में 1 ग्राम एटम है, और वो पूछ रहे हैं कि 40 केजी में कितने ग्राम एटम्स होंगे। तो 40 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। 40 केजी में कितने ग्राम एटम्स होते हैं, 40 केजी मींस 40 into 1000 grams will contain how many gram atoms, 1/40 into 40 into 1000, this will be equal to 1000 gram atoms. In this question I have calculated first of all the atomic mass of that particular element. एक एटम का मास गिवन था और उसको मल्टीप्लाई किया विद द एवोगैड्रो नंबर, और जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया दैट गेव मी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, और इसका एटॉमिक मास आ रहा है 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स अगर होगा वो एलिमेंट तो दैट मींस वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। उसने पूछा 40 केजी में कितने ग्राम एटम्स होंगे, बाय यूनिटरी मेथड आई हैव कैलकुलेटेड एंड दे आर कमिंग आउट टू बी 1000 gram atoms, so option is D. Next question, question number 38. And question number 38 is, if 3.01 into 10 raised to power 20 molecules are removed from 90 milligrams of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 left are. So in this question सबसे पहले जो 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, और साथ में 90 मिलीग्राम्स ऑफ H2SO4 गिवन है उसको भी आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर आपने मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड दोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव किए गए हैं तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडिंग इट बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये भी यूनिटरी मेथड से आया। वैसे आपको पता है कि 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर हो दे आर इक्वल टू 1 मोल। एक मॉलिक्यूल अगर हो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, और कुछ पर्टिकुलर नंबर गिवन हो, जैसे यहां पे गिवन है आपको 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1 बाय n नॉट इंटू 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 20। ये आपने याद ही रखना है कि अगर आपने मॉलिक्यूल्स गिवन है उनका नंबर गिवन है तो उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में जब कन्वर्ट करना है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यू हैव टू डिवाइड द मॉलिक्यूल्स बाय द एवोगैड्रो नंबर, उससे मोल्स आ जाएंगे और दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ रहे हैं 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स जो मॉलिक्यूल्स के हैं। इनको रिमूव किया गया, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम 90 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। 90 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स बनते हैं वो करना है हमने। आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम्स, और अगर 98 ग्राम्स H2SO4 प्रेजेंट हो उसमें कितने मोल्स होने चाहिए, 1 मोल, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो 98 grams of H2SO4 will be equal to 1 mole. 98 milligrams, that means 98 into 10 raised to power -3 grams of H2SO4 में कितने मोल्स होंगे। यूनिटरी मेथड से we have to calculate 1/98 into 98 into 10 raised to power -3 and this will be equal to 10 raised to power -3 मोल्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया कि इतने मोल्स जो हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम ये वाले मोल्स, तो कितने मोल्स रहने चाहिए, दिस माइनस दिस, दैट विल बी 0.5 into 10 raised to power -3. This minus this will be 0.5 into 10 raised to power
-3, and this will be the answer, and this option is B option. Next question is question number 39th. When 100 centimeter cube of 1 molar NaOH solution and 100 centimeter cube of 1 molar H2SO4 are mixed together, the resulting solution will be. वैसे क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए आपसे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगी या बेसिक होगी, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं दोनों के. जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में, एक तो है NaOH और दूसरा है H2SO4. दोनों केसेस में मिली इक्विवेलेंट्स यू हैव टू कैलकुलेट. मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, आपको पता है NaOH की यहां पे गिवन है मोलैरिटी, और रिलेशन बताया गया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी या एसिडिटी और बेसिसिटी. सिंपली यू कैन से इट एज वैलेंसी. तो नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. NaOH की वैलेंसी या एसिडिटी इज 1. इसमें जो मोलैरिटी है और नॉर्मेलिटी है दोनों एक ही वैल्यू होगी उनकी. तो मोलैरिटी जो है 1 मोलर गिवन है, दैट विल बी नॉर्मेलिटी ऑल्सो, और इसकी वॉल्यूम गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 मिलीलीटर्स. और दूसरी साइड H2SO4 जो है दैट इज 1 मोलर. बट इन दिस केस नॉर्मेलिटी अगर निकालनी हो आपने H2SO4 की, नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी इनटू 2, बिकॉज here the basicity of acid is 2. तो नॉर्मेलिटी विल कम आउट टू बी, जो मोलैरिटी है उसका डबल, तो 2 इंटू वॉल्यूम इज 100. अब आपने देखना जब रिएक्शन होगा इनका, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट होने चाहिए. और किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कम है? इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कम है. मिली इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है चाहे यहां पे, जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट होंगे इसके भी उतने मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट होने चाहिए. इसके मिली इक्विवेलेंट्स 100 रिएक्ट होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट्स 100 रिएक्ट हो होंगे. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगी उसमें ये एसिड रह जाएगा. रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक, बिकॉज ये एसिड पूरा रिएक्ट नहीं हो रहा है. इसके मिली इक्विवेलेंट्स 100 हैं, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन. इसके मिली इक्विवेलेंट्स 200 हैं, इसमें से जस्ट 100 रिएक्ट करेगा और 100 H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट रह जाएंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन में. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बिकॉज बेस पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है इसमें. तो आंसर हैज टू बी ए, एसिडिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th. 5.3 gram of Na2CO3 have been dissolved to make 250 cc of the solution. The normality of the resulting solution will be. So it is just the formula which you have to apply in this case 40th question में. और normality का जो equation, normality की जो आपको formula बताया गया है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए. normality क्या था? normality is number of gram equivalents of solute per liters of solution. Per liters of solution. This is the formula for normality. और number of gram equivalents निकलते हैं weight upon the equivalent weight of the solute. और weight given है यहां पे Na2CO3 का 5.3 grams. Na2CO3 का equivalent weight कैसे निकालेंगे आप? Na2CO3 में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी Na2CO3 का ही मैंने एग्जांपल लिया था जब समझाया था इसका इक्विवेलेंट वेट. टोटल पॉजिटिव वैलेंसी इन केस ऑफ Na2CO3 इज 2. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, दैट विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालने देखिए, वेट अपॉन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. और मॉलिक्यूलर वेट जो है Na2CO3 का, अगर वी कैलकुलेटेड, इट कम्स आउट टू बी 106 डिवाइडेड बाय 2. So this portion is the equivalent weight of Na2CO3. Weight upon equivalent weight, this is number of gram equivalents of the solute. और नीचे चाहिए आपको liters of the solution, but the
सॉल्यूशन इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब्स और मिलीलीटर्स, आपने कन्वर्ट करना है उसको लीटर्स में. कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? डिवाइडेड बाय 1000. दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी, और इसको अगर सॉल्व किया जाए दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.4 normal. So option will be C, 0.4 normal. Next question is question number 41. How many liters of oxygen are required at STP to burn completely 39 gram of benzene? इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड फॉर्म में कि बेंजीन की जब कंबशन करेंगे आप, बेंजीन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या क्या बनेगा और कैसे रिएक्शन होगा. तो बेंजीन इज C6H6 plus O2. This will give you CO2 gas plus H2O liquid. This is the equation. और इसको बैलेंसिंग करें अगर तो this will be 6 CO2 on the right hand side and thrice H2O and 15 by 2 O2. This is the balanced chemical equation of combustion of benzene. Next part इसमें देखिए कि how many liters of oxygen are required at STP पे बात हो रही है to burn completely 39 gram of benzene. अब इसका मास निकालिए. 12 6 are 72 plus 6, this is 78. और वो बात कर रहा है 39 ग्राम्स की. 39 ग्राम 78 ग्राम्स का एक मोल बनता है, तो 39 ग्राम्स का हाफ मोल बन रहा है. तो बात हो रही है हाफ मोल की. हाफ मोल ऑफ बेंजीन के साथ कितना O2 रिएक्ट होना चाहिए? 15 by 2 मोल्स. अगर एक मोल के साथ 15 by 2 मोल्स रिएक्ट हो रहा है, हाफ मोल के साथ 15 by 2 का हाफ, दैट इज 15 by 4 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट होने चाहिए. और कितनी O2 लीटर्स में रिएक्ट होनी चाहिए? अगर एसटीपी पे बात की जाए, एक मोल ऑफ O2 जो है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स. 1 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी कंडीशन शुड बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स. बात हो रही है यहां पे 15 by 4 की, तो 15 by 4 into 22.4, this will give you the answer. And if we solve this, this is equal to 84. This is 84 liters. एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को कि बेंजीन जब बर्न कर रही है, कंबशन हो रही है बेंजीन की, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग बेंजीन की कंबशन होती है. फिर बात है यहां पे स्टोइकियोमेट्री की. इसमें 1 मोल अगर बेंजीन है, इट रिएक्ट्स विद 15 by 2 मोल्स ऑफ O2. लेकिन उसने कहा है 39 ग्राम्स ऑफ C6H6. 39 ग्राम्स का मतलब है 78 ग्राम्स अगर एक मोल के बराबर है, तो 39 ग्राम्स विल बी हाफ मोल. दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट हाफ मोल ऑफ C6H6. 1 मोल 15 by 2 के साथ रिएक्ट करता है. हाफ मोल विल रिएक्ट विद 15 by 2 into हाफ, दैट विल बी 15 by 4. और एक मोल O2 एसटीपी कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स है अगर, तो 15 by 4 कितने के बराबर होगा? 22.4 into 15 by 4, that is equal to 84 liters. So answer will be D, 84 liters. Next question, question number 42. 100 milliliter of PH3 when decomposed produced phosphorus and hydrogen. The change in volume is. In this question also you have to write first of all the decomposition of PH3. कैसे decompose होती है PH3, और balanced form में you have to write that. Question number 42. PH3 decomposes to form P4 plus hydrogen. So this will be P4 and therefore it has to be multiplied by 4. अब यहाँ पे hydrogens हो गए हैं 12. So it has to be multiplied with 6. Hit and trial methods have balanced this. So this is gas and this is gas. So 4 volumes of PH3, अगर 4 volumes of PH3 ये decompose हो रहे हैं, we are getting 6 volumes of H2. This is the relation, reference relation which we have got from this equation, balanced chemical equation. और इसमें कहा इसने अगर 100 मिलीलीटर PH3 डिकम्पोज होती है तब कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा.
4 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम के बराबर है, या 4 मिलीलीटर से 6 मिलीलीटर बन रही है हाइड्रोजन, तो 100 मिलीलीटर से या 100 वॉल्यूम से कितना H2 बनना चाहिए? 6/4 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 150 milliliters or volumes. So what is the change in volume? Starting में it was 100 volumes या 100 milliliters, और जो H2 बनी है वो बनी है 150 volumes और 150 milliliters. तो इंक्रीज है यहां पे वॉल्यूम में, देखिए 100 से 150 पे हम गए हैं, तो 50 मिलीलीटर इंक्रीज विल बी द आंसर. तो आंसर विल बी ए, 50 milliliter increase. Next question, question number 43rd. Air contains nearly 20% oxygen by volume. The volume of air needed for complete combustion of 100 cc of acetylene will be. इथाइन की बात हो रही है और उसकी कम्बशन की बात हो रही है, तो इसमें भी आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि एसिटाइलिन कैसे बर्न करती है in the presence of oxygen. So that is question number 43rd. Air contains nearly 20% oxygen by volume. Percentage का बाद में देखेंगे हम, पहले देखना है volume of air needed for the complete combustion of 100 cc of acetylene will be. 100 cc of acetylene के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? पहले ऑक्सीजन निकालेंगे, उसके बाद एयर पे आएंगे हम. First of all, our aim should be to write the balanced chemical equation for the combustion of acetylene. Acetylene is C2H2 plus O2. Or combustion of hydrocarbon always gives the CO2 and H2O. It will be CO2 and H2O. Now we will balance this. यहाँ पे दो कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन्स आ गए, और उसके बाद we will come to हाइड्रोजन. यहाँ पे दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 हो गए हैं, तो 5 यहाँ पे भी करने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल गिव यू 5 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड ऑल्सो. तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इसमें देखिए कि 100 cc C2H2 अगर ली जाए तो उसके साथ कितना O2 रिएक्ट करना चाहिए? 1 मोल है ये, या 1 वॉल्यूम है, या 1 cc अगर ये हो, तो उसके साथ रिएक्ट करती है 5/2 टू cc ऑफ O2. और अगर ये 100 हो तो इसके साथ रिएक्ट करेगी 5/2 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 250 cc. 250 cc ऑफ O2. अब दिस इज ऑक्सीजन जिसके साथ ये एसिटाइलिन रिएक्ट की है, लेकिन बात है एयर की. उसने एयर पूछा और एयर की उसने बोला एयर कंटेन्स नियरली 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. दैट मीन्स 20 cc ऑफ ऑक्सीजन कहां से आएगी? दैट विल कम फ्रॉम 100 cc ऑफ एयर. दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम मीन्स 20 cc ऑफ ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम 100 cc ऑफ एयर. और कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 250 cc. 250 cc ऑफ ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम 100/20 into 250, and this will be equal to 1250 cc of air. तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने एसिटाइलिन की कंबशन कैसे होती है बैलेंस्ड फॉर्म में वो लिखना है. उसके बाद यहां पे स्टोइकियोमेट्री देखिए कि 1 मोल ऑफ C2H2 is reacting with 5/2 moles of O2. 1 cc of C2H2 will react with 5/2 cc of oxygen. लेकिन बात कर रहा है 100 cc of C2H2 को अगर कंप्लीटली बर्न करना है, तो 100 cc of acetylene will be burnt with the help of 5/2 into 100 cc of oxygen, that is 250 cc of oxygen. But he has asked for air contains nearly 20% oxygen, और उसने पूछा है कि the volume of air needed. एयर की बात की है, ऑक्सीजन तक आंसर निकाल के छोड़ना नहीं है. 250 cc अगर ऑप्शन होता तो एकदम से 250 cc ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना आपने, क्वेश्चन पूरा केयरफुली पढ़ने हैं. he has asked for air, so 20 cc of oxygen will come from 100 cc of air. 250 cc of oxygen will come from 1250 cc of air. So option has to be 1250, that is D. It will not be C.